Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of MBA 3.5 second semester who is taking economic analysis course. Today we will discuss the diamond water paradox, indifference curve theory towards consumer equilibrium. In the last lecture, we have discussed the cardinal approach towards consumer equilibrium. Basically, there are two approaches towards consumer equilibrium. First one is cardinal approach and second one is ordinal approach. According to the cardinal approach, utility can be measured in numbering. But according to the ordinal approach, utility cannot be measured in numbering, but it can be ranked or compared. In the last lecture, we have studied the concept of utility, marginal utility, total utility, negative utility, positive utility, saturation point means zero utility. We have also studied the cardinal approach towards consumer equilibrium in the last lecture. We have explained law of diminishing marginal utility. According to the law of diminishing marginal utility, consumer will be in equilibrium when its utility is maximized. According to the law of diminishing marginal utility, other things remaining same, as we consume more and more units of the same commodity, the utility of the successive units goes on diminishing. Then we have also studied law of equivalent marginal utility in order to define the equilibrium of the consumer in the cardinal approach. According to law of equivalent marginal utility, consumer will be in equilibrium when he spends his limited income on different commodities in such a way that the last dollar that he spent on each commodity gives him the same amount of satisfaction. Then we have observed that where marginal utility of X commodity divided by price of X commodity is equal to the marginal utility of Y commodity to the price of Y commodity. Today we will move further. One concept is diamond water paradox, which is also related to the cardinal approach towards consumer equilibrium. Firstly, we will explain this paradox, then we will study ordinal approach towards consumer equilibrium. This diamond water paradox is related to the previous cardinal approach. Remember, the diamond water paradox. Early economists such as Adam Smith were puzzled by the fact that some essential goods has much lower prices than some unimportant goods. Why would water essential to life be priced below diamonds which have much less usefulness? According to the diamond water paradox, अब देखें कुछ लाजमी चीज़ें होती हैं, नेसेसरी हैं, जिनकी प्राइस कम है और कुछ इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है जिनकी प्राइस हाई है. तो कहता है ऐसा क्यों है? मतलब एक कहता है सेंस ये कहती है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, उसकी प्राइस जो है वो हाई होनी चाहिए. जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, उसकी प्राइस लो होनी चाहिए. लेकिन कहता है इस जो यूजुअल हम कह रहे हैं, नेचुरली टॉक कर रहे हैं कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसकी प्राइस हाई होनी चाहिए, जो यूज़लेस है, कम इम्पोर्टेंट है, उसकी प्राइस लो होनी चाहिए. तो इसके अगेंस्ट क्यों है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उनकी प्राइस हाई है, कुछ जो बहुत इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, उनकी प्राइस लो है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्राइस है
पानी है, वाटर है। अब वाटर जो है वो इसेंशियल है, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी प्राइस लो है, इम्पोर्टेंट है, प्राइस लो है। जबकि डायमंड जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी प्राइस जो है वो हाई है। तो ये ऐसा क्यों है? इसे हमने डायमंड वाटर पैराडॉक्स का नाम दिया है। तो बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि वाटर जो एसेंशियल है लेकिन उसकी प्राइस लो है, उसकी वजह यह है कि वो बल्क सप्लाई में है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है। और इसी तरह डायमंड जो यूज़लेस है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस हाई है। उसकी प्राइस हाई होने की वजह यह है कि वो स्कैर्स है, लिमिटेड है, वो रिलेटिवली स्मॉल सप्लाई में है। दैट्स वाई उसकी प्राइस जो है वो हाई है। और इन द सेम वे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाटर विच इज़ लो डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ वाटर विच इज़ आल्सो लो, it must be equal to the marginal utility of diamond to the price of diamond. So this paradox is resolved when we acknowledge that water is in great supply relative to the demand and thus has a very low price per gallon. On the other hand, diamonds in contrast are rare and are costly because their supply is small relative to demand, so their price is so high. So at equilibrium, their marginal utility of water divided by price of water must be equal to the marginal utility of diamond over price of diamond. As this equilibrium is already defined by the law of equimarginal utility, or you can say that consumer equilibrium under coordinal approach. मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ डायमंड वाटर पैराडॉक्स को। ये पैराडॉक्स बेसिकली ये है, हम ये एक नेचुरली सोचते हैं कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो एसेंशियल है, उसकी प्राइस हाई होनी चाहिए, जबकि जो चीज़ अनइम्पोर्टेंट है उसकी प्राइस जो है वो लो होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर एग्जांपल दी कि देखें प्राइस एसेंशियल है लेकिन रियलिटी में उसकी प्राइस लो है। डायमंड जो है वो इतना एसेंशियल नहीं है, इतना अनयूज़फुल है, तो उसकी प्राइस हाई है। तो ये पैराडॉक्स एक क्रिएट हो गया, एक कन्फ्यूजन है। उसका फिर आंसर दिया गया कि ये पैराडॉक्स इस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। इसका आंसर ये बनता है कि वाटर एसेंशियल है लेकिन उसकी प्राइस लो इसलिए है क्योंकि उसकी सप्लाई ज़्यादा है, जबकि डायमंड जो है वो एसेंशियल नहीं है, इतना मतलब यूज़फुल भी नहीं है, अब मतलब आप कह रहे हैं अनयूज़फुल है, तो उसकी प्राइस हाई होने की वजह है कि उसकी सप्लाई जो है वो शॉर्ट है, दैट्स वाई उसकी प्राइस हाई है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑर्डिनल अप्रोच टुवर्ड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। द मेजर assumption of ordinal approach is that utility cannot be measured in numbering. According to this approach, utility is a psychological concept, so it is difficult to represent utility in numbering, but it can be ranked or compared. ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक यूटिलिटी को हम नंबरों में मेजर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल अप्रोच के मुताबिक यूटिलिटी को हम नंबरों में मेजर नहीं कर सकते। कहते हैं कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, हमें उससे यूटिलिटी हासिल होती है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल और डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस दिस यूटिलिटी इन नंबरिंग। ऑर्डिनल अप्रोच बेसिकली प्रोफेसर हिक्स ने प्रेजेंट की थी। कहता है यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसे हम नंबरों में मेजर नहीं कर सकते। हमने कोई चीज़ खाई या इस्तेमाल की, हमें उससे यूटिलिटी हासिल होती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसे नंबरों में बता सकें, बट इट कैन बी रैंक्ड और कंपेयर्ड। हम इसको रैंक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हमें ये इस कमोडिटी की निस्बत इसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिली है, इस कमोडिटी की निस्बत इसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिली है। इसको रैंक कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन नंबरों में नहीं बता सकते हैं। ये इसकी मेजर असम्पशन है ऑर्डिनल अप्रोच टुवर्ड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल थ्योरी की।
ऑर्डिनल थ्योरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए अंडर ऑर्डिनल अप्रोच हमें दो तरह के कंसेप्ट से वेल अवेयर होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी एंड सेकंड वन इज़ बजट लाइन। इन दो के ज़रिए हम जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच एक्सप्लेन करेंगे। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी एंड इंडिफरेंस कर्व थ्योरी एंड बजट लाइन, इन दोनों की मदद से जो है हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली शोज द alternative combination of two commodities which give consumer equal amount of satisfaction and consumer is indifferent to choose from these combination। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व जो है वो दो कमोडिटीज़ के मुख्तलिफ कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है जो कंज्यूमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज़ के मुख्तलिफ कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है। इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज़ के मुख्तलिफ कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है। अब जो मुख्तलिफ कम्बिनेशन है उन पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। मुख्तलिफ कम्बिनेशन पे दो कमोडिटीज़ के लेट से दो कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई हैं, उनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है जो कंज्यूमर परचेज़ कर रहा है, विच गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। वो जितने वो कम्बिनेशन है 4 या 5 जितने भी कम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रहा है उन सारे कम्बिनेशन पे यूटिलिटी का लेवल सेम है और कंज्यूमर जो है उनके लिए कोई सा भी कम्बिनेशन चूज़ कर ले, सब इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन रखते हैं। हम टेबल और डायग्राम की मदद से एग्जांपल लेंगे तो आप लोगों को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। मुझे पता है शायद डेफिनेशन से इतना क्लियर ना हुआ हो, जब टेबल और डायग्राम बनाएंगे क्लियर हो जाता है। Let's take an example. Let's say we have two commodities A and B. Here you can see that in the table, in the first column there are 4 combinations J, K, L, M. There are 4 combinations J, K, L, M. First combination is J, which represents 12 units of A commodity and 2 units of B commodity. 12 units of A commodity and 2 units of B commodity, ये एक कम्बिनेशन बन गया। इस पे यूटिलिटी का लेवल कुछ भी हो सकता है, कुछ होगा यूटिलिटी का लेवल। सेकंड कम्बिनेशन है K। सेकंड कम्बिनेशन है K। यू कैन सी दैट 6 यूनिट्स ऑफ A एंड 4 यूनिट्स ऑफ B। हमने B के 2 यूनिट्स इंक्रीज़ किए और A के 6 यूनिट डिक्रीज़ करने पड़े। ऑब्वियसली वी हैव लिमिटेड इनकम। अगर आपने किसी एक कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट्स अवेल करने हैं तो दूसरी के आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास इनकम लिमिटेड है, रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। तो आपने B के 2 यूनिट्स अगर इंक्रीज़ किए तो ऑब्वियसली आपको A के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। लेट्स से कि आपने B के 2 यूनिट्स इंक्रीज़ किए हैं, उसके लिए आपको A के 6 यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करने पड़े हैं। सो अनदर कम्बिनेशन विच इज़ K विच रिप्रेजेंट्स 6 यूनिट्स ऑफ A एंड 4 यूनिट्स ऑफ B। अब इस पे जो इस कम्बिनेशन पे जो यूटिलिटी का लेवल है वो सेम है जो कि इससे पहले कम्बिनेशन J पे जो यूटिलिटी का लेवल था। मतलब J पे हम 12 यूनिट्स A के ले रहे थे और 2 यूनिट्स B के ले रहे थे, उस पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल था वो सेम है जो कि K कम्बिनेशन पे है, जिस पे 6 यूनिट जो है वो A कमोडिटी के हैं और 4 यूनिट्स जो हैं वो B कमोडिटी के हैं। इन द सेम वे L कम्बिनेशन पे आप देखें तो 4 यूनिट्स A के हैं और 6 यूनिट B के हैं। अब अगेन B के 2 यूनिट्स इंक्रीज़ किए हैं, उसके लिए हमने जो है वो 2 यूनिट्स ही A के सेक्रीफाइस किए हैं। तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इक्वल है K और J के। इसी तरह चौथा कम्बिनेशन हमारे पास M है
जहाँ पे 3 यूनिट्स ए के हैं और 8 यूनिट्स बी कमोडिटी के हैं। अभी हमारे पास 4 कम्बिनेशन आ गए हैं जो ए कमोडिटी और बी कमोडिटी के डिफरेंट कम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि इन चारों कम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम है। क्यों सेम है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि आपकी तरफ से, क्यों सेम है। अब देखें क्यों सेम है। देखें आपने 2 यूनिट से बी के इंक्रीज़ किए, 2 से 4 किए, तो 6 यूनिट जो है आपने ए के सेक्रीफाइस किए। तो क्या पता आपके लिए ये 2 बी के वो 6 ए के यूनिट्स के इक्वल हों, उतनी इंपॉर्टेंस रखते हो आपके लिए। आपने अगेन 2 यूनिट्स बी के इंक्रीज़ किए, आपको फिर ए के सेक्रीफाइस करने पड़े। अब इस दफ़ा पहले से कम सेक्रीफाइस किए हैं। पहले से कम क्यों सेक्रीफाइस किए हैं? क्योंकि यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। आप पहले से कम सेक्रीफाइस करेंगे, यूटिलिटी डिक्लाइन हुई है। आपने अगेन 2 इंक्रीज़ किए, दैन 1 सेक्रीफाइस किया है, 4 से 3 पे आए हैं, यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। डेट्स वाई आप कम से कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर एक कमोडिटी के यूनिट्स इंक्रीज़ करने के लिए दूसरी कमोडिटी के जो यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं वो कहलाता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक्स का यू कैन से डेट बी का 1 यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए एक कमोडिटी के जितने यूनिट आपको डिक्लाइन करने पड़ रहे हैं, डेट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यू कैन से डेट marginal rate of substitution is the amount of y commodity that must be sacrificed to get an additional unit of x. You can say that MRS is the amount of y that must be sacrificed to get an additional unit of x. x का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y के जितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं उसको? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। x का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y के जितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड वन ऑफ द मेजर अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी इज़ दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिक्लाइन। MRS डिक्लाइन होनी चाहिए। ये इंडिफरेंस कर्व थ्योरी की एक मेजर अजम्पशन है कि MRS मस्ट बी डिक्लाइन। MRS क्या है? इस टेबल में देखें, B के यूनिट्स बढ़ाने के लिए आपको A के जितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं वो MRS लाती है। और देखिए हर दफ़ा MRS डिक्लाइन हो रही है। फर्स्ट टाइम हमने 6 यूनिट सेक्रीफाइस किए, दैन हमने 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए, दैन हमने 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया, तो ये MRS डिक्लाइन हो रही है। ये इसकी अजम्पशन है। डेट्स वाई हमने ये कम्बिनेशन इस तरीके से बनाए हैं कि अगर हम बी के यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ए के यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हर दफ़ा जो है वो कम से कम सेक्रीफाइस पे जा रहे हैं। डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। पहले हमने 6 सेक्रीफाइस किए, फिर 2 सेक्रीफाइस किए, दैन 1 सेक्रीफाइस किया। सो इंडिफरेंस कर्व शोज द अल्टरनेटिव कम्बिनेशन ऑफ, ये देखें, अल्टरनेटिव कम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज विच गिव्स कंज्यूमर इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट टू परचेज वन ऑफ दीज। अब देखिए हमने 4 कम्बिनेशन बनाए और हमने कहा कि इन पे कंज्यूमर का इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है। कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट टू परचेज वन ऑफ दैम, कोई सा भी परचेज कर ले सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम है। हमने इसे डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया। आप देखें JKLM 4 पॉइंट्स पे आप देखें, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो इंडिफरेंस कर्व हमें हासिल हो गया। अब इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो, उस पर इस लाइन के ऊपर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो, उस पर यूटिलिटी का लेवल सेम होगा। मतलब जो यूटिलिटी का लेवल J पॉइंट पे है वही यूटिलिटी का लेवल K पॉइंट पे है, वही यूटिलिटी का लेवल L पॉइंट पे है, वही यूटिलिटी का लेवल M पॉइंट पे है। हाँ, कम्बिनेशन दोनों के चेंज है लेकिन यूटिलिटी का लेवल सेम है। कम्बिनेशन चेंज है मतलब एक को बढ़ा रहा है तो दूसरे को कम भी कर रहा है। तो इस इंडिफरेंस कर्व, दिस इज नेम्ड एज द इंडिफरेंस कर्व। इस इंडिफरेंस कर्व पे यूटिलिटी का लेवल सेम है। इन चारों के अलावा कोई और भी पॉइंट हो इस इंडिफरेंस कर्व पे तो उस पर भी यूटिलिटी का लेवल सेम होगा। सो इंडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज विच गिव कंज्यूमर इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन
एंड कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट टू परचेज वन ऑफ देम। MRS मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ वाई दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर कमोडिटीज, लेट्स से। So these are the properties of indifference curve. Indifference curve must be convex to origin. Must be convex to origin. Here that is marginal rate of substitution. थोड़ी correction है, marginal rate of substitution must be declined. Indifference curve convex to origin तब भी होगा जब MRS डिक्लाइन हो रही हो। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू रीजन तब भी होगा जब MRS जो है वो डिक्लाइन हो रही हो। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू रीजन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू रीजन तब होगा जब MRS जो है वो डिक्लाइन हो रही हो। अगर MRS डिक्लाइन ना हो रही हो, अगर MRS इंक्रीज़ हो रही हो, तो इस केस में ये कनकेव टू रीजन बनेगा। उस केस में ये कनकेव टू रीजन होगा। जो इंडिफरेंस कर्व हमने कहा है कि ये कन्वेक्स टू रीजन होना चाहिए। अगर MRS डिक्लाइन की बजाय इंक्रीज़ हो तो उस केस में ये कनकेव टू रीजन होगा, जो हमने कहा कि वैलिड नहीं है। और अगर MRS कांस्टेंट रहे तो उस केस में ये स्ट्रेट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, जो हमने कहा कि इस तरह का इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। MRS मस्ट बी डिक्लाइन होनी चाहिए। उसी केस में इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू रीजन बनेगा। देन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व शोज़ द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखिए, एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है कि आप वहाँ पे y की क्वांटिटी ज़ीरो कर रहे हैं, मतलब एक ही क्वांटिटी परचेज़ कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो दो कमोडिटीज़ के कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है, सिर्फ एक कमोडिटी को ज़ाहिर नहीं करता। जब y एक्सिस को टच करेगा तो x ज़ीरो हो गया, जब x एक्सिस को टच करेगा तो y ज़ीरो हो गया। तो फिर एक कमोडिटी परचेज़ कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इंडिफरेंस कर्व टू कमोडिटीज़ के कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है। दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू x एक्सिस और y एक्सिस। फोर्थ प्रॉपर्टी इज डैट इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी कनकेव टू रीजन। जैसे मैंने बताया, कनकेव टू रीजन कब होगा? जब MRS इंक्रीज़ हो रही हो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी कनकेव टू रीजन, कनकेव नहीं होगा, क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर्व की मेजर अजम्पशन बोली है कि MRS डिक्लाइन होनी चाहिए। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब MRS रिमेन सेम, जब आपकी MRS जो है वो सेम रहे तब वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज़ द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व शोज़ द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब एक ही इंडिफरेंस कर्व पे तो सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम है, जो मर्जी कम्बिनेशन ले ले, लेकिन मुख्तलिफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो मुख्तलिफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़ाहिर करेंगे। जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ज़ाहिर करेगा। यू कैन सी द मैप, दिस इज इंडिफरेंस कर्व मैप। मैं ये प्रॉपर्टी थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू रीजन। कन्वेक्स टू रीजन होना चाहिए, ज़रूरी है, और ये तब होगा जब MRS डिक्लाइन होगी। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़ाहिर करते हैं। तो जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि वाई की क्वांटिटी ज़ीरो हो गई, वाई एक्सिस को टच करने का मतलब है एक्स की क्वांटिटी ज़ीरो हो गई।
एक्स की क्वांटिटी ज़ीरो होने का मतलब है कि आप सिर्फ वाई को परचेज़ कर रहे हैं, वाई की ज़ीरो होने का मतलब है आप सिर्फ एक्स को परचेज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ एक कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है ये टू कमोडिटीज़ के डिफरेंट कम्बिनेशन को ज़ाहिर करता है, सिर्फ एक कमोडिटी को ज़ाहिर नहीं करता। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन उस सूरत में होगा जब एम आर एस जो है वो रिमेन सेम, एम आर एस विल रिमेन सेम, एम आर एस सेम रहे तब इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो हमने अज्यूम किया कि एम आर एस जो है वो डिक्लाइन होगी, सेम नहीं रहेगी। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब अगर इंडिफरेंस कर्व एक से ज़्यादा है, जैसे कि ये इंडिफरेंस कर्व मैप में ज़ाहिर किया गया है, तो जो इसमें I4 है जो कि सबसे हायर है वहाँ पे सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई होगा, I3 पे उस पर कम होगा, I2 पे उस पर कम होगा, I1 पे उससे कम होगा। मतलब लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे I1 पे है और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे I4 पे है, जबकि एक इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ MRS, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, which is equal to perpendicular over base means dy over dx। मैथमेटिकली आपने फाइंड करना हो तो डेरिवेटिव के ज़रिए फाइंड करते हैं dy over dx, और अगर डेरिवेटिव के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकल टर्म है, और अगर आप वैसे डेल्टा y over डेल्टा x भी कह सकते हैं, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, दिस इज़ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRS। और ये नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आने का मतलब है डिक्लाइन हो रही है। अच्छा जी, बजट लाइन, जिस तरह मैंने बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो तरह के कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है, एक है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व हमने देखा क्या होता है, अब हम देखते हैं बजट लाइन। बजट लाइन शोज़ द अल्टरनेटिव कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ विच कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज इनकम। बजट लाइन बेसिकली डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ को ज़ाहिर करता है विच कंज्यूमर कैन बाय विद हिज लिमिटेड इनकम, जो कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम से बाय कर सकता है। बेसिकली ये आपकी परचेजिंग पावर को ज़ाहिर कर रहा है। जो इंडिफरेंस कर्व था वो यूटिलिटी लेवल को ज़ाहिर कर रहा था, जबकि जो बजट लाइन है ये ज़ाहिर करती है डिफरेंट कम्बिनेशन को जो हम अपनी इनकम से अवेल कर सकते हैं, विच कैन वी परचेज विद हिज लिमिटेड इनकम। ये बेसिकली एक बाउंड्री लाइन को ज़ाहिर करती है। बजट लाइन शोज़ द अल्टरनेटिव कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ विच कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज इनकम। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर हैज़ $12 इनकम that he wants to spend on two commodities A and B. Price of A is $1.5 while price of B is $1। ये डिफरेंट प्राइसेस आपके सामने मेंशन करती हैं। ये देखिए आपके सामने टेबल बना है बजट लाइन बनाने के लिए। अब देखें कमोडिटी ए की जो प्राइस है वो है 1.5, कमोडिटी बी की प्राइस है 12। तो $12 में अगर उसने सिर्फ बी कमोडिटी परचेज़ करनी है तो वो 12 परचेज़ कर सकता है, 12 यूनिट्स। अगर उसने ए कमोडिटी परचेज़ करनी है, ए की प्राइस 1.5 है, तो वो मैक्सिमम 8 यूनिट परचेज़ कर सकता है। और अगर दोनों परचेज़ करते हैं तो आपके सामने कम्बिनेशन मेंशन है, मतलब 6 यूनिट। आपको मैं एक कम्बिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि सेकंड कम्बिनेशन है। अगर 6 यूनिट ए के परचेज़ करने हैं तो 1.5 प्राइस है, उसकी कितने पैसे बन जाएंगे, ये बन जाएगा $9 बन गए, $9। और बी की प्राइस $1 है, 3 उस पर स्पेंड किए, तो टोटल 12 स्पेंड हो गए। टेबल से क्लियरली एक्सप्लेन है, आप देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे जो है वो मीटिंग के दौरान जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जूम मीटिंग के दौरान। आप देखें बजट लाइन इनकी मदद से हमने ड्रा कर दी है, डिफरेंट कम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रही है। विच कैन परचेज विद हिज लिमिटेड इनकम, विच कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज लिमिटेड इनकम। बजट लाइन शोज़ द अल्टरनेटिव कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ विच कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज लिमिटेड इनकम। आप देख सकते हैं कि बजट लाइन के
राइट साइड पे आप देखें कि उस वहाँ पे भी पेयर्स हैं, लेकिन वो अनअटेनेबल हैं आपकी लिमिटेड इनकम से। वो सेटिस्फेक्शन का लेवल तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन वो अनअटेनेबल पेयर हैं। अगर आप बजट लाइन की लेफ़्ट साइड पे देखें, डाउन साइड पे, तो वो अटेनेबल पेयर हैं, लेकिन वहाँ पे आपके रिसोर्स फुली यूटिलाइज नहीं होते। अटेनेबल पेयर हैं नीचे बजट लाइन के, लेकिन वो जो येलो शेडेड है, तो वहाँ पे आपके जो रिसोर्स हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं होते। जबकि बजट लाइन के राइट साइड पे जो पेयर्स हैं वो अनअटेनेबल पेयर्स हैं, वहाँ पे आपके रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स रह जाते हैं, लिमिटेड रह जाते हैं। तो वो अनअटेनेबल पेयर है, वो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से परचेज़ नहीं कर सकते। तो जो बजट लाइन के ऊपर पेयर्स होंगे उन पे हमारी इनकम जो है वो भी फुली स्पेंड हो रही होगी, ठीक है, और वो अटेनेबल पेयर्स होंगे, रिसोर्स भी फुली यूटिलाइज हो रहे होंगे। सो दिस इज़ बजट लाइन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच, मैंने बताया था कि इन दो की मदद से हम इंडिफरेंस कर्व थ्योरी की मदद से और बजट लाइन थ्योरी की मदद से हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच, देयर आर टू कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज द नेसेसरी कंडीशन and second one is sufficient condition. Necessary condition is that slope of indifference curve must be equal to the slope of budget line. इंडिफरेंस कर्व की और बजट लाइन की स्लोप दोनों इक्वल होनी चाहिए। मीन्स इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट विद द हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। हमारा जो बजट लाइन, आप देखें बजट लाइन हमारी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। बजट लाइन हमारे रिसोर्स पावर को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम अपने रिसोर्सेज से क्या मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं। जबकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो यूटिलिटी लेवल को ज़ाहिर कर रही है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, हायर यूटिलिटी लेवल होगा। लेकिन हमने लिमिटेड इनकम से बजट लाइन जो है हमारी लिमिटेशन को ज़ाहिर कर रही है। तो जहाँ पे हमारी बजट लाइन मैक्सिमम पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट बनाए, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। टेंजेंट बनाए मीन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये पहली कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। सेकंड है सफिशिएंट कंडीशन। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू रीजन। आपका जो इंडिफरेंस कर्व है डेट मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजन। कन्वेक्स टू रीजन हो मीन्स स्लोप ऑफ MRS इज नेगेटिव। अगर आप MRS का सेकेंड डेरिवेटिव लें, MRS का डेरिवेटिव लें, सॉरी, y का सेकेंड डेरिवेटिव होगा dy, बिकॉज MRS इज इक्वल टू dy/dx। ये पहला डेरिवेटिव है y का, तो ये कहलाता है MRS। अगर MRS का दोबारा डेरिवेटिव लें, इस MRS का डेरिवेटिव लें, तो उसकी जो स्लोप हो वो नेगेटिव हो, विच मीन्स डैट इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजन। वो नेगेटिव में आए, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y वो नेगेटिव में आए, इट मीन्स MRS जो है वो डिक्लाइन हो रही है, इंडिफरेंस कर्व विल बी कन्वेक्स टू रीजन। सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, एंड सेकेंड वन इज दैट इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजन। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। देखें डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं। नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व भी जो है वो बजट लाइन को टच कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ टेंजेंट नहीं बना रहे, कट कर रहे हैं आपस में, लेकिन कट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारे रिसोर्स फुल यूटिलाइज नहीं हो रहे, रिसोर्स अंडर यूटिलाइज रह रहे हैं, वो येलो एरिया में है, रिसोर्स अंडर यूटिलाइज रह रहे हैं, हमारी इनकम बच जाती है। तो आप देखें जो रेड इंडिफरेंस कर्व है वो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है जो हम अचीव कर रहे हैं अपने बजट लाइन के साथ। उसके ऊपर भी I4 इंडिफरेंस कर्व है, उस पर हायर सेटिस्फैक्शन है, इससे भी ज़्यादा, रेड वाले से भी ज़्यादा, लेकिन वो अनअटेनेबल पेयर्स में है, अनअटेनेबल एरियाज़ में है, हम वो कैच अप नहीं कर सकते अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। सो इंडिफरेंस कर्व जो है वो X पॉइंट पे हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट बना रही है। यहाँ पे आप देखें दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हैं। फर्स्ट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये भी एग्री कर रहे हैं आप।
और सेकंड जो है इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू रीजन। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं और कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ ओवर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can contact me through comments through Google Classroom, and my students also contact me in the class timings on Zoom. I will share the link on WhatsApp group on in the regular classes. आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं आप नोट कर लिया करें, जब वीडियो लेक्चर सुनते हैं नोट कर लिया करें, और जब हमारी क्लासरूम अरेंज होती है गूगल क्लासरूम पे या जूम पे मीटिंग अरेंज होती है तो उसमें आप क्वेश्चन जो है मेरे से कंसल्ट कर लिया करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।